Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So in computers, today we will continue with the chapter 5, that is Microsoft PowerPoint 2007. So we have already learned few things like starting PowerPoint, then creating the presentations, built-in templates. Okay, these things we have already learned. So let's have a quick revision. Firstly, we will start the PowerPoint using the search button PowerPoint PowerPoint. Here I will type and then you can see PowerPoint has been started. It's being started. Now we have already seen how to create a new presentation. We just have to click here and new option we can take. And from this option, we can create a blank new presentation. And if we want to use the templates, then our MS PowerPoint software has already some built-in presentations which can be used quickly and edited as per our choice. So if you want to use the built-in templates, what you will do, we have to click on the Office button, and here we have new option. Click on new and you can see all the installed templates are there in install templates. You can take any prepaid templates from here. Already यहाँ हमारे पास built-in presentations होती हैं जो पहले से बनी हुई हैं. We can choose any presentation. इसमें से कोई भी presentation हम लेंगे and हम उसको अपने according set कर सकते हैं. Like I take this presentation quick show and then click on create button. You can see ये presentation हमारी जो बनी बनाई है already PowerPoint में वो open हो गई है. मैंने ये नहीं बनाई है, ये already बनी हुई presentation हमारे Office software के साथ आती है. They are known as the built-in templates. इनको हम क्या बोलते हैं? Built-in templates, जिनको हम directly MS PowerPoint के software से directly उठा के ले सकते हैं और उनमें अपने according changes कर सकते हैं. Now the next thing is applying themes. Themes क्या होती हैं? Themes means we have some pre-designed formats. बहुत सारे हमारे पास डिजाइन्स होते हैं जो हम डायरेक्टली ले सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए. जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई है इसमें हम कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं. कैसे लगाएंगे? वी हैव टू क्लिक ऑन द डिजाइन टैब एंड हेयर यू विल सी इन डिजाइन टैब. ठीक है, हेयर यू कैन सी वी हैव सो मेनी डिजाइन्स. बहुत सारे डिजाइन्स है हमारे पास यहाँ पे. यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो टू सी मोर डिजाइन्स. बहुत सारे डिजाइन्स हैं, आप इसमें से कोई भी डिजाइन ले सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड डिजाइन एंड यू विल सी द चेंजेस इन द प्रेजेंटेशन. नाउ द नेक्स्ट इज चेंजिंग कलर स्कीम. Every presentation comes with color schemes. You can change the color scheme of the complete presentation or a single slide. The colors of specific elements on a slide such as title and the background can also be changed. ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में कलर्स को चेंज कर सकते हैं. हमने डिजाइन तो लगा दिया थीम्स में, अब हमें जो ये कलर्स आए हैं ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं लग रहे. सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कलर्स ऑप्शन. ठीक है, डिजाइन आपने जो लगाया यहीं पे डिजाइन के साथ में आपको यहाँ पे कलर बटन मिलता है. So click on this arrow and you can see so many color options are available here. हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस हैं. आपको इसमें से जो भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे यू कैन टेक दैट कलर. और जो भी आपको कलर आपने लिया यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स. ठीक है, तो सारी स्लाइड्स पे यही वाला जो हमारा कलर स्कीम है लग जाएगा. ओके, सो दिस वे वी कैन चेंज द कलर स्कीम फॉर ऑल द स्लाइड्स. Now the next is changing background color. Means हम अपनी PowerPoint presentation के background में slide का जो background है वहाँ पे कोई भी color या pattern, texture या picture लगा सकते हैं. कैसे लगाते हैं? We have to click in the design tab and design tab में already themes तो हमारे पास थी ही. Suppose हमें theme नहीं लगानी है, then we can click on the background styles. And here you will see बहुत सारे हमारे पास बैकग्राउंड स्टाइल्स हैं, आप इसमें से कोई ले सकते हैं. एंड इफ यू डोंट लाइक क्लिक ऑन द फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन एंड ये बॉक्स आपके सामने आएगा. यहाँ पे यू कैन टेक द सॉलिड फिल. सॉलिड फिल में आप कोई भी कलर बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. लाइक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर लिया है तो बैकग्राउंड मेरा पूरा ब्लू हो गया है. इफ यू डोंट लाइक दिस क्लिक ऑन द ग्रेडियंट फिल. ग्रेडियंट फिल में आपके बहुत सारे यहाँ पे ग्रेडियंट हैं बने बनाए. 2 और मोर कलर से ये हमारे ग्रेडियंट्स बने हुए हैं. यू कैन टेक the required gradient from here. Then you can take type, like rectangle I have taken. Direction you can take. Okay, color you can take and then click on apply. Apply to all or only to the this slide.
Okay, so I click on apply to all. Now you can see my presentation is looking very nice. You can see from here. Next is picture or texture fill. You can fill a picture or texture in the background using this option. What you have to do, click on the required texture. जो भी आपको टेक्सचर लेना है वो आप यहाँ से निकाल लीजिए. ठीक है, तो वो टेक्सचर आ जाएगा. एंड इफ यू डोंट लाइक दैट टेक्सचर यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर ऑल्सो यूजिंग दिस इंसर्ट फ्रॉम फाइल. क्लिक ऑन द फाइल और जो भी पिक्चर आपको बैकग्राउंड में लगानी है वो पिक्चर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए. लाइक मेरे पास कंप्यूटर में अभी ये वाली पिक्चर पड़ी हुई है, तो आई टेक दिस पिक्चर. ठीक है, तो हमारे बैकग्राउंड में ये पिक्चर आ जाएगी. ट्रांसपेरेंसी इस पिक्चर की कितनी रहेगी वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं. मीन्स ये पिक्चर कितनी डार्क रहेगी या कितनी लाइट रहेगी बैकग्राउंड में, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं. एंड देन अगर आपको सारी स्लाइड्स पे ये पिक्चर अप्लाई करनी है, देन अप्लाई टू ऑल, यू हैव टू क्लिक. ओके, सो दिस वे वी कैन सेट द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड. हम अपनी स्लाइड में अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड रख सकते हैं. कोई पिक्चर लगा सकते हैं, कलर स्कीम लगा सकते हैं, या फिर हम ऑलरेडी जो हमारे पास डिजाइन अवेलेबल हैं, थीम्स अवेलेबल हैं, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट क्या होती है? स्मार्ट आर्ट इज अ ग्राफिक tool that allows you to present data or information visually in the form of pyramids, diagrams, matrix, etc. These graphics helps in conveying our ideas and messages easily and effectively. It contains a variety of graphical layouts and diagrams to display data in a presentation. क्या होता है स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ डायग्राम्स, पिरामिड्स, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें डाल सकते हैं. उससे क्या होगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इजीली कन्वे होगा, हमारा मैसेज इजीली कन्वे होगा, बहुत इफेक्टिव लगेगी हमारी प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें डायग्राम भी आ जाएंगे. तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. जो भी चीज़ हम, जो भी आइडियाज इसमें डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उनको समझना बहुत ईजी हो जाएगा. तो हम कैसे करेंगे? वी हैव टू फर्स्टली क्लिक ऑन द इंसर्ट and here you will see the option of smart art. Okay, so click on this smart art button. You will see हमारे सामने एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का बॉक्स बन के आ जाएगा. यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास डायग्राम्स के ऑप्शंस हैं. इसमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं कि आपको किस तरह का डायग्राम अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना है. ओके, लिस्ट वाले डायग्राम्स हैं, प्रोसेस वाले डायग्राम्स हैं, साइकिल वाले डायग्राम्स हैं. आपको जो भी जिस भी तरह का डायग्राम अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना है, उस तरह का डायग्राम आप ले सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ ये वाला ऑप्शन ले लिया है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वाला. दिस इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. सो आई हैव टेकन दिस एंड देन क्लिक ऑन ओके. आपके पास में ये डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. आपने जो भी डिजाइन चूज किया है अकॉर्डिंगली योर स्मार्ट आर्ट विल बी इंसर्टेड. नाउ यू कैन टाइप द टेक्स्ट एज पर योर चॉइस. आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लगाना है. लाइक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. So this application software I have written here. Now I want to write system software at this place. और यहाँ पे मुझे एक बॉक्स में system software लिखना है, जिसके लिए बॉक्स मुझे नहीं मिल पा रहा है. Then what I will do? We have to go in the design tab and here you can see add shape option is given. Click on the option and you can see add shape after is given. Click on this option and you can see हमारे पास एक shape और आ गया है. तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं. राइट क्लिक, क्लिक ऑन द एडिट टेक्स्ट. यहाँ पे आप लिख दीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर. आप अपने अकॉर्डिंग पूरी स्मार्ट आर्ट आपकी बन चुकी है, उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. और अगर आपको ये बॉक्सेस नहीं चाहिए, देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट बटन. उससे क्या होगा, हमारे ये स्मार्ट आर्ट में हमारे जो ये बॉक्सेस हैं जो हमें नहीं चाहिए वो डिलीट हो जाएंगे. So this way we can insert a smart art. स्मार्ट आर्ट हम बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं. बहुत तरह के ऑप्शंस यहाँ पे हमें डिजाइन में मिल जाते हैं, जिनको यूज करके हम उनको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, लेआउट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपको जैसा भी चाहिए. डिजाइन और फॉर्मेट को यूज करके आप इसको पूरा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. पूरी स्मार्ट आर्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन. व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन मीन्स आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने जो बनाई है, इसको किस किस तरह से देख सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रेजेंटेशन को देखने के. प्रेजेंटेशन को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं. आपको यहाँ व्यू में जाना है एंड यू कैन सी बहुत सारे हमारे पास व्यूज हैं यहाँ पे. नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू. दीज आर द डिफरेंट व्यूज.
So let us see firstly normal view. It is the main editing view which is used to write and design the presentation. Mostly हम लोग जो normally use करते हैं, जो अब लोग अभी use कर रहे हैं, this is known as the normal view. हम लोग अपनी जो slide बनाते हैं, जो presentation बनाते हैं, that is made in the normal view. In normal view we can do so many things with the presentation. We can apply themes, designs, outlines, text, borders, everything. Whatever you do, that is done in the normal view. ठीक है, नॉर्मल व्यू में कैसे देखेंगे स्लाइड को? वी हैव टू क्लिक ऑन द व्यू एंड हियर वी हैव ऑप्शन ऑफ नॉर्मल. ओके, सेकंड इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. व्हाट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू? इट डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. कैसे देखेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू को? हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे एंड क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर. देखिएगा ये हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू है. इसमें हमें सारी स्लाइड्स एक छोटे छोटे स्लाइड्स दिखती हैं. ठीक है, मिनिएचर व्यू दिखता है सारी स्लाइड्स का. वो सब स्लाइड्स छोटी छोटी होकर दिखती हैं. इट डिस्प्लेस मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन. इन स्लाइड सॉर्टर व्यू यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स, insert or delete the slides, add transitions and set the timings for the slideshow. आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में? आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. लाइक 3 वाली जो स्लाइड है उसको उठा के आप 6 में रख सकते हैं. टेक द ट्रांजिशन इफेक्ट. ठीक है, ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं, न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. टाइमिंग्स यहाँ स्लाइड्स शो का कैसा रहेगा वो यहाँ से आप सेट करते हैं कि एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक होगा या ऑटोमेटिकली कितने टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली हमारी स्लाइड शो में नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी. ओके, सो दिस वे स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज्ड टू सेट दीज थिंग. नेक्स्ट इज notes page view. Notes page view, let's see what is notes page view. Click on the view and click on the notes page. You can see इस तरह से हमारी स्लाइड दिखती है notes page view में. Notes page is available on the view tab. If you add notes while working in normal view, you can see them in notes page view. It displays an image of the selected slide along with the notes related to that slide. These notes are helpful to the presenter while showing the presentation. Notes page में क्या होता है? हमारी जो स्लाइड है उसके साथ हम कुछ नोट्स लिख सकते हैं. ठीक है, वो नोट्स हमारे नोट्स पेज में डिस्प्ले होते हैं, नोट्स पेज व्यू में डिस्प्ले होते हैं. हम सपोज कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कहीं पे ये पूरा स्लाइड शो चला रहे हैं और उसमें 1 बाय 1 ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं. देन नोट्स पेज को यूज करके हम नोट्स को याद रख सकते हैं कि हमें किस स्लाइड के साथ क्या बोलना है. ठीक है, वी कैन राइट आवर नोट्स हियर. नोट्स पेज में हम अपने नोट्स लिख सकते हैं, एक एक स्लाइड के साथ कुछ अपने पर्सनल नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे. एंड द लास्ट इज स्लाइड शो व्यू. स्लाइड शो व्यू इज यूज्ड व्हेन वी डिलीवर द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस. जब हम ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं देन वी यूज स्लाइड शो व्यू. स्लाइड शो व्यू में हमारे सारे एनिमेशंस हमने जो लगाए हैं वो सब शो होते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट शो होते हैं, एंड दिस इज शोन टू द ऑडियंस इन फुल स्क्रीन मोड. ओके, इन अ सीक्वेंस 1 by 1 slides are displayed. To view the slideshow, we can click on the slideshow button on the status bar, or we can select the slideshow tab and click on the from beginning or from current slide button, or we can also use F5 key to view the slideshow. These are the different ways to view the slideshow. Okay. So children, chapter is complete today. I hope everything was well understood to you. This much for today. Thank you. Bye bye.